اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ آج کے پروگرام روزمرہ زندگی کا لطف اٹھانے میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ۔ آج میں آپ سے مرضی کے اختیار کے متعلق بات کرنا چاہتی ہوں۔ دیکھیں، جیسا کہ خدا نے ہمیں آزاد مرضی دی ہے، استثنا 30:19 میں لکھا ہے، میں آج کے دن آسمان اور زمین کو تمہارے برخلاف گواہ بناتا ہوں کہ میں نے زندگی اور موت کو، برکت اور لعنت کو تیرے آگے رکھا ہے۔ پس تو زندگی کو اختیار کر کے تو بھی جیتا رہے اور تیری اولاد بھی۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہر ایک فیصلہ جو آپ کرتے ہیں آپ کے بچوں اور باقی لوگوں پر اثر انداز ہوتا ہے؟ اب میں اس کی تسلی کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کو بات سمجھ آئے۔ خدا نے ہمارے آگے زندگی اور موت کو رکھ دیا ہے۔ زندگی اور موت کے بیچ فیصلہ کرنا مشکل نہیں ہے، یا برکتوں اور لعنتوں کے بیچ فیصلہ کرنا کہ کسے چنے مشکل نہیں۔ وہ ہمیں اشارہ بھی دیتا ہے کہ اگر ہم سمجھ نہ پائیں تو کہ زندگی کو اختیار کر تاکہ تو اور تیری اولاد جیتے رہیں۔ جی، خدا نے ہمیں آزاد مرضی کیوں دی؟ مجھے لگتا ہے کہ خدا نے جب انسان کو آزاد مرضی دینے کا فیصلہ کیا تو خطرہ مول لیا، لیکن وہ روبوٹ نہیں چاہتا تھا جن کی کوئی مرضی نہ ہو بلکہ اس کے اشاروں پر چلیں۔ وہ ایسے لوگوں کو چاہتا تھا جو اپنی مرضی سے اسے پیار کریں، اس کی فرما برداری کریں، اپنی زندگی اس کے لیے گزاریں۔ تو آزاد مرضی کا بڑا فائدہ ہے۔ اسے ظاہر ہوتا ہے کہ خدا نے ہم پر بھروسہ کیا ہے، اس کی مرضی سے ہمیں اختیار ملتا ہے، اور مجھے یہ بات پسند ہے۔ اس سے متعلق آیات مجھے پسند ہیں کہ جو بوتے ہو وہی کاٹو گے۔ میرے خیال سے یہ بات بھی مجھے اختیار دیتی ہے کہ میری زندگی میں کیا ہوگا۔ میں چاہتی ہوں کہ آج آپ اس بات کو سمجھیں، وہ یہ ہے کہ آزاد مرضی نہ صرف آپ کو اختیار بخشتی ہے بلکہ آپ پر ذمہ داری بھی ڈالتی ہے، اور اکثر ہی ہم اس بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آزاد مرضی کا اختیار بہت شاندار ہے جس سے ہم سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہر طرح سے کیے گئے فیصلے کا ایک نتیجہ بھی ہوتا ہے، جانتے ہیں، جو کہ بہت شاندار ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہم کوئی غلط فیصلہ کرتے ہیں تو نتیجہ بہت اچھا نہیں نکلتا۔ اور چونکہ لوگ خاص طور پر آج ذمہ داری اٹھانے میں خاصی دلچسپی نہیں رکھتے، لیکن وہ وقت تھا جب لوگ ذمہ داری لینے کو اپنے لیے بڑی عزت کی بات سمجھتے تھے، لیکن لگتا ہے جیسے آج بہت سے لوگ ذمہ داری سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم خدا کے معاملے میں ایسا نہیں کر سکتے۔ اگر آپ روزانہ ورزش کرتے یا جم جاتے ہیں یا آپ روزانہ واک کرتے ہیں یا جو بھی، آپ کو اس سے اچھے فوائد اور اچھے نتائج ملیں گے۔ اب آپ کہیں کہ میں نے تو کر کے دیکھا ہے اور مجھے تو بس دکھ ہی ملا، آپ اتنا آگے گئے ہی نہیں کہ آپ کو فائدہ پہنچنا شروع ہوتا۔ لیکن کتنے لوگ ہیں، اور یہاں تک کہ میں اور ڈیو بھی، اور میں جانتی ہوں، مجھے یقین ہے کہ ایسے لوگ جو اپنی عمر سے 10 سال بڑے لگتے ہیں، انہیں دکھ ہوتا ہے کہ در حقیقت ان کے پٹھوں میں دم نہیں، اور وہ ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو اچھا جسم رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کاش میں بھی ایسا نظر آتا، یا کاش میں اتنا طاقتور ہوتا۔ جو لوگ طاقتور ہیں انہوں نے کاش کہہ کر کچھ بھی حاصل نہیں کیا بلکہ صحیح فیصلہ کر کے کیا ہے۔ اور دیکھیں، جب میں حکمت کی بات کرتی ہوں، جب میں امثال کی کتاب سے تعلیم دیتی ہوں تو میں ہمیشہ کہتی ہوں، اور یہ حکمت کی میری اپنی تعریف ہے، لیکن میرا خیال ہے یہ درست ہے کہ حکمت کا مطلب ابھی وہ فیصلہ کرنا ہے جس سے آپ مستقبل میں مطمئن ہوں۔ دیکھیں، جب ہم جذبات کے مطابق جیتے ہیں تو وہ کرتے ہیں جو فی الحال اچھا لگے، لیکن مستقبل میں بہت بار ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے ایسا فیصلہ کیا۔ لیکن حکمت والا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ آج وہ کریں جس سے آپ کل مطمئن ہوں، چاہے وہ آپ کے لیے کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ یشوع 24:15۔ یشوع نے ایک حکمت کی بات کی۔ اس نے کہا کہ اگر خداوند کی پرستش تمہیں بری معلوم ہوتی ہے تو آج ہی اسے جس کی پرستش کرو گے چن لو۔
خواہ वही देवता हों जिनकी प्रस्तिश तुम्हारे बाप दादा बड़े दरिया के उस पार करते थे, या अमूरियों के देवता हों जिनके मुल्क में तुम बसे हो। अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, सो हम तो खुदावंत की ही प्रस्तिश करेंगे। क्या बात है, क्या आप अपने दोस्तों के से काम करते हैं ताकि वो आपको अपने ग्रुप में शामिल रखें, या क्या आप खुदा की खिदमत कर रहे हैं, भले वो चाहें या ना चाहें? कभी कभार हमें अकेले ही खड़ा होना पड़ता है अगर हमें सही काम करना हो तो। बहुत सारे लोग जिंदगी के फैसले ये देखकर करते हैं कि दूसरे उनके बारे में क्या सोचेंगे, या क्या कहेंगे, या क्या करेंगे, या क्या नहीं करेंगे। लेकिन ये बड़ी अहमकाना बात है, क्योंकि जब नतीजा सामने आता है तो इसका सामना आपको और सिर्फ आपको ही करना पड़ता है। अब हम नहीं चाहेंगे कि दूसरे हमारे लिए फैसला करें। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम दूसरों से मशवरा नहीं कर सकते। शायद आपको किसी की सलाह की जरूरत हो, सो आप चंद लोगों के पास जाते और पूछते हैं कि वो क्या करते हैं। लेकिन हासिल कलाम ये है, हतमी फैसला आप ही को करना है, क्योंकि मैं फिर से कहूंगी कि नताइज का सामना आपको और सिर्फ आपको ही करना होगा। शायद आपने इस पर गौर किया है या नहीं, लेकिन बहुत से लोग आपको मशवरा देते हैं। हर किसी की एक राय है, लेकिन आपकी जिंदगी का ताल्लुक आपसे है और आपको वही करना है जो आप करना चाहते हैं, बल्कि वो भी जो आपको लगता है कि खुदा आपसे करवाना चाहता है जिंदगी के हर मामले में। कुछ लोग आप पर इख्तियार जमाएंगे अगर आप जमाने देंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है कि उन्हें खुद पर इख्तियार न जमाने दें जितनी कि उनकी इसकी कोशिश है कि ना करें। इख्तियार जमाना जादू की ही एक किस्म है। इब्लीस इख्तियार जमाने की कोशिश करता है, लेकिन खुदा हमेशा हमारी रहनुमाई करके सिखाता है और फैसले को हम पर छोड़ देता है। लेकिन जब लोग आपको ये पैगाम दे रहे हैं कि अगर तुम वो नहीं करोगे जो हम चाहते हैं तो हम में दुरुस्ती नहीं रहेगी या आप हमारे साथ नहीं रहेंगे, आपको मजबूती से खड़े होना है और वही करना है जो आपके ख्याल से खुदा की मर्जी है। मेरे डैड ने मेरी माँ पर इख्तियार जमाया, इस वजह से उनकी कोई जिंदगी न थी, जो बड़े अफसोस की बात थी। मैं आज भी उदास हो जाती हूँ जब उनके बारे में सोचती हूँ, क्योंकि उन्हें कभी कुछ करने का मौका न मिला। जिंदगी में कोई सुख ना देखा और उनके दोस्त भी बमुश्किल एक दो ही थे, और मेरे बाप ने उन पर इख्तियार जमाकर गलत किया। लेकिन गलती उनकी थी कि उन्होंने उन्हें ऐसा करने दिया। आप आज वो फैसले करें जिन पर कल पछताना ना पड़े। पछताने का क्या मतलब है? इसका मतलब है अफसोस करना, मायूस होना या किसी बात पर परेशान होना, मातम मनाना या नाला होना, किसी चीज को खो देने का एहसास जो ना रही हो, किसी काम को कर गुजरने या ना करने पर दुख का एहसास। कुछ लोग इस वक्त इस सब में मुब्तला हैं। आपकी जिंदगी में पछतावा है क्योंकि आपने सही फैसले नहीं किए जो आप जानते थे कि आपको करने चाहिए, या वो फैसले ही जो आप करना चाहते थे। आप कितनी बार जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और आप सही सिमत में चलते हैं, लेकिन कोई और आपके फैसले पर मलामत करता है। सो आप फैसला करते हैं कि जैसा वो चाहते हैं आपको इसके मुताबिक करना चाहिए, बजाय वो करने की जो आपके ख्याल में खुदा आपसे करवाना चाहता है। और मैं चाहती हूँ कि आप खुदा को खुश करने वाले हो, ना कि इंसान को। खुदा को खुश करें, ना कि आदमियों को। आपको पता है पौलुस रसूल ने गलतियों 1:10 में जबरदस्त बात की, और मैं अक्सर ही इसके मुतालिक सोचती हूँ। उसने कहा, अब मैं आदमियों को दोस्त बनाता हूँ या खुदा को? क्या आदमियों को खुश करना चाहता हूँ? अगर अब तक आदमियों को खुश करता रहता तो मसीह का बंदा ना होता। एम्प्लीफाइड तर्जुमे में लिखा है, अगर मैं लोगों में मशहूर होने की कोशिश करता। हम मशहूर होना चाहते हैं, हम लोगों में अपने लिए दूसरों से मकबूलियत चाहते हैं। लेकिन वो कहता है कि अगर मेरा मकसद लोगों में मशहूर होना होता, एम्प्लीफाइड तर्जुमे में लिखा है, तो मैं मसीह का रसूल ना होता। मैं सोचती हूँ कि आज कितने लोग अपनी मंजिल से दूर हैं क्योंकि वो और दूसरे लोगों को अपनी जिंदगी का इख्तियार दिए बैठे हैं, बजाय दिलेरी के साथ पाक रूह की रहनुमाई के पीछे चलने के। आप जानते हैं, मेरा मानना है कि ऐसे भी लोग हैं जिनका खुदा से कोई रिश्ता महज इसलिए नहीं है कि उनके दोस्त या घर के लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे। यूहन्ना 12 की 42 और 43 इसे बर्दाश्त कीजिएगा। अब यहाँ लिखा है, तो भी सरदारों में से भतेरे उस पर ईमान लाए, यानी मसीह पर। और अब देखें, लोग यीशु पर ईमान लाए, मगर फरीसियों के सबब से, जो कि मजहबी हलके के लोग थे, इकरार ना करते थे, ता ऐसा ना हो
کہ عبادت خانہ سے خارج کیے جائیں۔ او خدایا، کیا کوئی ایسا دیکھ رہا ہے جو اپنے ایمان کا اقرار کھل کر اس لیے نہیں کرے گا کہ اسے باقی تمام لوگوں کے ہمراہ آفس کے لنچ پر نہیں بلایا جائے گا؟ کتنے لوگ کھل کر اپنے ایمان کا اقرار اس لیے نہیں کریں گے کہ انہیں پارٹی میں نہیں بلایا جائے گا؟ یا لوگ سوچیں گے کہ آپ یہ ہیں یا وہ ہیں، اور آپ کو مذہبی چیلا یا بائبل کا کٹر پیروکار کہیں گے کہ یہ تو یسوع کا دیوانہ یا بنیاد پرست ہے۔ دیکھیں، اگر آپ کسی بات میں بنیاد پرست ہوں گے تو یسوع کے لیے بنیاد پرست ہوں، نہ کہ دنیا کی کسی پیشکش کے لیے۔ وہ کرنے کا فیصلہ کرے جو آپ کے مطابق خدا آپ سے کروانا چاہتا ہے، نہ کہ وہ جو لوگ کروانا چاہتے ہیں۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہمیں لوگوں کو خوش نہیں کرنا چاہیے۔ لکھا ہے کہ اسے باقی تمام لوگوں کے ہمراہ خود کے بجائے لوگوں کو خوشی دیں، لیکن خود غرض اور خود پرست نہ ہونے کی بات ہے۔ جو بات میں کر رہی ہوں وہ یہ ہے کہ اگر خدا اور انسان دونوں میں سے ایک کو خوش کرنے کی بات آتی ہے تو پھر فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ کی مرضی ہے۔ تو آپ کو چننا ہے کہ خدا کو پہلی جگہ دیں، کیونکہ جب آپ اس کی بادشاہی اور راست بازی کی تلاش پہلے کریں گے تو یہ ساری چیزیں بھی آپ کو ملتی جائیں گی۔ خدا کو ہمیشہ اپنی زندگی میں پہلے رکھیں اور سب کچھ صحیح ہو جائے گا۔ پاک روح کی رہنمائی میں چلنا روحانی سمجھداری کو ظاہر کرتا ہے۔ رومیو 8:14 میں لکھا ہے، اس لیے کہ جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں۔ ایک ترجمے میں لکھا ہے خدا کے بچے ہیں، ایک میں لکھا ہے خدا کے بیٹے، کیونکہ پاک روح کی رہنمائی میں چلنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہم خدا کے ہیں۔ سو میں آپ سے ان چند ایک فیصلوں کے متعلق بات کروں گی جو آپ کو کرنے کی ضرورت ہے، جنہیں آپ کو اپنانا ہے، اور سب انتہائی سادہ ہیں، لیکن کچھ ایسی باتیں ہیں جو ہمیں سب سے بڑی مشکل میں ڈال دیتی ہیں اگر ہم صحیح فیصلہ نہ کریں۔ سب سے پہلے آپ اپنے ماضی سے نکلنے کا فیصلہ کریں۔ دیکھیں، آپ کو ماضی کو منزل بنانے کی ضرورت نہیں، اور میں اس کا زندہ ثبوت ہوں، اور بہت سے جو آج دیکھ رہے ہیں جن کی زندگی میں زبردست گواہی ہے کہ خدا نے ان کی زندگی میں کیا کام کیا۔ میرے باپ نے میرے ساتھ زیادتی کی اور ماں نے تنہا چھوڑ دیا۔ جو پہلا شخص میری زندگی میں آیا اس سے شادی کر لی کیونکہ مجھے لگا کہ کوئی مجھے نہیں چاہے گا۔ وہ پہلے دن سے ہی مجھ سے بے وفا تھا۔ وہ مجھے دوسرے شہروں میں کئی بار تنہا چھوڑ کر نکل گیا۔ میں بہت دکھی تھی اور میرے پاس کئی وجوہات تھی کہ میں کڑواہٹ اور غصے سے بھری رہوں، اور بہت عرصے تک ایسا تھا بھی، لیکن یہ خدا کا طریقہ نہیں ہے۔ سو بالآخر کلام سے اور پاک روح کے تربیت کرنے سے مجھے سمجھ آیا، مجھے پرانی چیزوں کو چھوڑ کر مستقبل کی چیزوں کی طرف بڑھنا تھا۔ اگر آپ نے اب تک ایسا نہیں کیا، اگر آپ آج تک کسی بات کے لیے ماتم کر رہے ہیں جو بات آپ کو 20 برس پہلے کرنی چاہیے تھی، تو آپ کو اس کو ترک کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ آج بھی کسی کے 10 سال پرانے برتاؤ کو لے کر غصے اور کڑواہٹ سے بھرے ہیں، تو آپ کو انہیں معاف کرنے کی اور مستقبل کی چیزوں کی طرف بڑھنے کی ضرورت ہے جو خدا نے آپ کے لیے رکھی ہیں۔ امید سے بھرے رہیں، نہ کہ کسی طرح کے افسوس سے۔ کیا آپ کی سوچ مظلوموں والی ہے، یا پھر آپ کی سوچ زندگی میں ایک فاتح کی سی ہے؟ چاہے آپ کے ماضی میں آپ کے ساتھ کچھ بھی ہوا ہو، جب آپ مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں تو بائبل کہتی ہے کہ آپ نئے مخلوق بن جاتے ہیں۔ اس پر غور کریں کہ ایک بالکل نیا مخلوق، 2 کرنتھیوں 5:17 سنیں۔ اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، ایک نئی تخلیق، مکمل طور پر نیا۔ پرانی اخلاقی اور روحانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئیں اور نیا پن آ چکا ہے۔ آج اس سے کسی کو حوصلہ پانے کی ضرورت ہے۔ جس لمحے آپ مسیح کو قبول کرتے ہیں، آپ وہ نہیں رہتے جو ہوا کرتے تھے۔ آپ کے تمام گناہ بخشے جا چکے ہیں، نہ صرف ماضی کے گناہ بلکہ حال کے، یہاں تک کہ مستقبل کے بھی۔ لیکن آپ کو اس معافی کو قبول کرنا ہے جس کی قیمت یسوع پہلے ہی ادا کر چکا ہے جبکہ وہ صلیب پر چڑھا۔ جو خدا ہمیں دینا چاہتا ہے، ہمیں ایمان سے اسے پانا ہے۔ ایک حوالہ سنیں اور دیکھیں، آپ کو اپنی زندگی اس بنیاد پر گزارنے کی ضرورت نہیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا یا آپ نے ماضی میں کیا کیا۔ ایسا کوئی گناہ نہیں ہے جس کے لیے خدا آپ کو معاف نہ کرے، اور نہ صرف وہ آپ کو معاف کرتا ہے بلکہ لکھا ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو ہم سے یوں دور کرتا ہے جیسے پورب سے پچھم دور ہے، اور انہیں پھر سے یاد نہیں کرتا۔ بالآخر مجھے سمجھ آیا کہ میں اپنا وقت برباد کر رہی ہوں۔
पुराने गुनाहों को खुदा के पास लाने और मुसलसल उन्हीं बातों के लिए माफी तलब करने से, क्योंकि मैं उससे उन चीजों के मुतालिक बात कर रही थी जिन्हें वो भूल चुका है। आप मसीह में नए मखलूक हैं, बल्कि हकीकतन आप नई रूहानी मट्टी हैं और हम में काम होने की जरूरत है। और मसीह में ईमानदार होते हुए पाक रूह हम में रहता है ताकि बदलाव के इस अमल में मदद करे कि हम मसीह की छवि पर ढलते जाएं। मुस्तकबिल आपका है और कभी कभी आपको नई शुरुआत की खातिर जोर मारना पड़ता है, क्योंकि इब्लीस जरूर उसे आपसे छीनने की कोशिश करेगा। मुझे लगता था कि मैं हमेशा ही कमतर जिंदगी गुजारूंगी, लेकिन मैं गलत थी, क्योंकि मैंने इब्लीस के झूठ का यकीन किया। ना सिर्फ मेरा मयार जिंदगी गिरा हुआ था, बल्कि मैं ईमान रखती हूँ कि खुदा ने वो सब चीजें जो मेरे साथ हुई, जो गलत थीं, लेकर उनको मेरी जिंदगी की भलाई के लिए इस्तेमाल किया। मैं मानती हूँ मेरे पास बेहतर जिंदगी है और जितना मैं हो सकती थी उससे ज्यादा बेहतर शख्सियत हूँ। क्या मैं अपनी जिंदगी में ऐसे हालात से नहीं गुजरी? खुदा के साथ सब बातें मुमकिन हैं। खुदा आपकी जिंदगी में अजीब काम करता है। आप कभी सोच भी नहीं सकते थे कि वो ऐसे काम कर सकता है, लेकिन कहना शुरू करें कि खुदा के साथ सब बातें मुमकिन हैं। अब एक लम्हे के लिए सोचो कि चुनाव पर बात करते हैं और बहुत से लोग सोचते हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकते, और मैंने भी ऐसे बहुत से साल गुजारे हैं जिनमें मुझे लगा कि ये तो बस मेरे बस से बाहर है कि क्या सोचूं। सुनिए, अब बात है तो है, लेकिन ये सच नहीं। आप अपनी सोचों को चुन सकते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि तमाम गलत तसव्वुरात, नजरियात और दलाइल और हर एक ऊंची चीज को और हर एक ख्याल को कैद करके मसीह का फर्मा बरदार बना देते हैं। वाओ, ये तो लगता है जैसे एक भरपूर जिम्मेदारी है। आप जानते हैं शुरुआत में ये बहुत मुश्किल था। आपको इसका आदी होना पड़ता है कि खुदा के कलाम में से जाने कि गलत सोच होती क्या है। लेकिन जितना आप कलाम को पढ़ेंगे, मिसाल के तौर पर बाइबल में लिखा है हसद ना करो, कि हसद हड्डियों की बोसीदगी है। एक वक्त था कि मुझे नहीं पता था कि मसला क्या है। मैं किसी से हसद करने लगती और मुझे समझ ना आता कि मेरी सोच गलत है। लेकिन अब अगर मेरे जहन में हसद का कोई ख्याल आए तो मैं जानती हूँ, और एकदम से पाक रूह मुझे याद दिलाता है वो हवाला जिसमें लिखा है हसद ना कर, और मैं गलत सोच को गिराना जानती हूँ। और अक्सर तो मैं बावाज़े बुलंद कहती हूँ, नहीं, मैं हसद नहीं करूंगी, खुदा की मर्जी नहीं है। बाप, मैं उस शख्स के लिए दुआ करती हूँ कि उसे हर तरह से बरकत दे, और मैं उसके लिए खुश हूँ। आप वो सोच सकते हैं जो खुदा चाहता है कि आप सोचें। जो कुछ भी दिमाग में आ जाए, सोचने की जरूरत नहीं। वो हवाला जो मैंने अभी दिया, 2 करंथियों 10 की 4 से 5, मैं फिर से पढ़ती हूँ। इसलिए कि हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं हैं, बल्कि खुदा के नजदीक किलों को ढा देने के काबिल हैं। आप जानते हैं किला क्या होता है? आपकी सोच का ऐसा इलाका जिस पर इब्लीस ने कब्जा कर लिया हो, ऐसा इलाका जहां वो छुपता और पनाह लेता है, और यकीनन आपको अपने झूठ का यकीन दिलाता है, जो कि धोखा है। जब हम किसी ऐसी बात का यकीन करते हैं जो सही नहीं है, तो हम धोखा खाते हैं। मैं सोचती हूँ कि आज कितने ही झूठ हैं जो आपको सच लगते हैं। क्या ऐसे झूठ हैं जिनका यकीन मैं आज भी करती हूँ? हो सकता है, और मैं खुदा से दुआ करती हूँ कि इन्हें मुझ पर जाहिर करे और मुझे बताए। मैं अपनी जिंदगी झूठ पर यकीन करते नहीं गुजारना चाहती। मैं सच्चाई को जानना चाहती हूँ, क्योंकि सिर्फ सच्चाई ही हमें आजाद कर सकती है। चुनांचे हम तसव्वुरात और हर एक ऊंची चीज को जो खुदा की पहचान के बरखिलाफ सर उठाए, और आपकी याद दहानी के लिए एक बार फिर से कह रही हूँ कि हर एक ख्याल को कैद करके मसीह का फर्मा बरदार बना देते हैं। और बाइबल बताती है कि हमें अपनी अकल को नया करना है, और ऐसा हम खुदा के कलाम ही से करते हैं। रोमियो 12 की 2, इस जहान के हम शक्ल न बनो, बल्कि अकल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ और मसीह की छवि पर ढलते जाओ। यह फतह की कुंजी है, अकल को नया करना और जानना कि खुदा के तरीके से किस तरह सोचें। अगर आप वो पाना चाहते हैं जो खुदा चाहता है कि आप पाएं, तो आपको सीखना होगा कि खुदा के तरीके से किस तरह सोचें, और वो कहना जो खुदा कहता है, ना कि अपने जज्बात के मुताबिक सोचना, वो तमाम बातें सोचना जो दुनिया सोचती है। हमें किसी भी तौर से दुनिया के हम शक्ल नहीं बनना, बल्कि अकल नई हो जाने से अपनी सूरत को बदलते जाना है। फिर आप जी गौर करें
फिर आप इस काबिल होंगे कि खुदा की मर्जी का तजर्बा मालूम कर सकें, उसकी नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी। ये बहुत अच्छा हवाला है क्योंकि ये कहता है कि अगर कभी आप खुदा की कामिल मर्जी को अपनी जिंदगी में जाहिर होता देखना चाहें तो आपको पाक रूह के साथ मिलकर काम करना जरूर है ताकि आपकी अकल खुदा के कलाम के मुताबिक नई हो जाए। एक और चुनाव, अपने अल्फाज को चुने और बहुत ध्यान से चुने। लिखा है मगर जबान को कोई आदमी काबू में नहीं कर सकता, वो एक बला है। सो हमें खुदा की मदद की जरूरत है, हमें दुआ करनी है। मैं हर रोज दुआ करती हूँ कि खुदा मेरे मुंह पर निगहबान बिठा ताकि अपनी जबान से तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। ऐ खुदा, मेरे मुंह के अल्फाज और दिल के ख्याल तेरी नजर में मकबूल ठहरे। मैं जानती हूँ कि मैं खुदा के बिना कुछ नहीं कर सकती। मैं अब भी अपनी जुबान से गलतियां करती हूँ, लेकिन आप में से वो जो ज्यादा बातूनी हैं, आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जो लोग ज्यादा बोलते हैं उनमें अपने मुंह से गलतियां करने का रुझान ज्यादा होता है बनिस्बत उनके जो जरा कम बोलते हैं। बिलाशुबा बाइबल में लिखा है कि सुनने में तेज और बोलने में धीरे हो। हम अक्सर अजराह मजाक कहते हैं कि जाहिर है कि खुदा चाहता है कि हम बोलने से ज्यादा सुने, क्योंकि उसने हमें 2 कान और 1 मुंह दिया है, वरना वो हमें 2 मुंह और 1 कान देता। और जैसा कि इमसाल 18 की 21 में लिखा है, मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है। मौत और जिंदगी अल्फाज ताकत रखते हैं और जो उसे दोस्त रखते हैं वो इसका फल खाते हैं। आप जानते हैं अल्फाज इख्तियार रखते हैं, ऐसे ही जैसे इस कप में पानी है। मैं भी थोड़ा पीने भी वाली हूँ। जबरदस्त, बहुत अच्छा है। लेकिन क्या आपको पता है हम इसे कीचड़ से भी भर सकते हैं जो जायके में ज्यादा अच्छा ना होगा। आपके अल्फाज इख्तियार रखते हैं और आप इनका इंतखाब कर सकते हैं। फिर से हमारे आज के कलाम की बात है कि आप चुन सकते हैं कि आप कैसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। बाइबल याकूब 1:26 में बताती है कि अगर कोई अपने आप को दीनदार समझे और अपनी जुबान को लगाम ना दे बल्कि अपने दिल को धोखा दे तो उसकी दीनदारी बातिल है। ओ खुदाया, देखें कुछ मजहबी लोग ही कुछ सबसे बड़े मुबालगा करने वाले हैं जो शायद ही आपको कहीं और मिले। शुक्र है कि सब नहीं, लेकिन कुछ बहुत ही तनकीद करने वाले और अदालत करने वाले और मनफी हैं, और उनके ख्याल में वो बहुत रास्तबाज हैं, क्योंकि वो हफ्ते में 2 से 3 मरतबा चर्च जाते हैं। और लिखा है कि तुम्हारी दीनदारी बातिल और बेकार है अगर तुम अपनी जबान को लगाम नहीं देते। हम हर रोज हर तरह के फैसले करते हैं। आप गुस्सीले और कड़वे हो सकते हैं या आप माफ कर सकते हैं। आप खुद पर अफसोस कर सकते हैं या आप अपने रवैये को, अपनी सोच को, अपने अल्फाज को बदलने की जिम्मेदारी ले सकते हैं और खुदा से मिन्नत कर सकते हैं कि वो बोलने में आपकी मदद करे। आप अपनी जिंदगी के मुतालिक शिकायत कर सकते हैं या इसके लिए कुछ कर सकते हैं जो आपके पास नहीं है, इस पर बात कर सकते हैं, या जो है उसके लिए शुक्रगुजारी कर सकते हैं। आप फैसला कर सकते हैं कि यह आपके लिए नई शुरुआत हो जाए। आप फैसला कर सकते हैं कि भरोसे के लिए, खुशी के लिए, इत्मीनान के लिए शुक्रगुजार हों। और आप फैसला कर सकते हैं कि अब से खुद तरसी, हसद, गुस्सा, कड़वाहट और माफ ना करने जैसी बातें ना हों जो हमारी जिंदगी में किसी भी तरह से जहर भरती और हमारी खुशी को चुराती हैं। आज ही अच्छे फैसले अपने लिए करना शुरू करें, ऐसे फैसले जो खुदा के मुताबिक हों, और आप जिंदगी में कुछ न कुछ नई जबरदस्त बातें होती देखेंगे।